अगर एक राजा अच्छा है If a king is good, तो उसकी प्रजा खुश होगी। his people will be happy. अगर एक राजा बुरा है If a king is तो bad, उसकी प्रजा सताव में होगी। his people will be in torment. हमारे पास तो बेस्ट राजा है। We have the best king. Our king is the best king. हमारा राजा सबसे अच्छा राजा Our है। king is the most benevolent king. हमारा राजा सबसे दया से भरा Our हुआ king है। is the most loving king. हमारा राजा तो सबसे ज्यादा प्यार करने वाला Our है। king is the most compassionate king. हमारा राजा तो सबसे ज्यादा करुणामय राजा है। और केवल ये ही नहीं, Not just this, वो राजा हमारा बाप है। that king is our dad. आज आपको ये क्वेश्चन अपने आप को पूछना है, क्या मैं ईसाई धर्म में हूं या मैं किंगडम ऑफ गॉड परमेश्वर के राज्य में हूं? दोनों अलग बात है। Today you have to ask yourself this question: am I in the religion called Christianity or am I in the kingdom of God? And there's a difference in the two. Amen. Hallelujah. John 3:3, यूहन्ना 3:3. Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. यीशु ने उनसे उत्तर दिया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, नया जन्म ना ले, तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। अब ध्यान से सुनो, ये केयरफुली। आप एक चर्च की मेंबरशिप ले सकते हो, You can take the membership of a church. आप ईसाई धर्म में जा सकते हो, You can go into the religion of मगर Christianity. जब तक नया जन्म नहीं हुआ, राज्य में परमेश्वर के प्रवेश नहीं कर सकते। But until you are born again, you cannot enter the kingdom of heaven. So there are so many religious Christians who are in a religion called Christianity, but they have not entered into the kingdom of God, because you cannot see the kingdom of God unless you are born again. तो ऐसे बहुत से मुंह बोले ईसाई हैं जो ईसाई धर्म में तो हैं पर परमेश्वर के राज्य में नहीं है, क्योंकि नया जन्म पाए बिना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं मिलता। Oh hallelujah. ठीक है सब अभी तक? Everybody okay? अगर हो बाहर तो आ जाओ अंदर, If you're दरवाजे outside- खुले हैं इस राज्य के। If you are outside the kingdom, come inside the kingdom. The doors are open. हाँ, धर्म नहीं है भैया। This is no religion, buddy. यही तो लोग कह रहे हैं, ये कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों को क्रिश्चियनिटी। अरे हम कह रहे हैं हम क्रिश्चियनिटी से वापस ला रहे हैं लोगों को। They are saying we are converting to Christianity. We are bringing people out of Christianity. हम ईसाइयों को निकाल कर परमेश्वर के राज्य में ला रहे हैं। We are bringing Christians out of the religion and putting them in the kingdom of God. Amen. ये धर्म नहीं है। This is no religion. This is the kingdom of ये God. परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। और आज कई लोग बोलते हैं, अरे तुम्हारा तो हिंदू नाम है, तुम कैसे मान रहे हो? अरे भैया, परमेश्वर के राज्य में सब आमंत्रित हैं। Some people say you have a Hindu name. How do you believe in Jesus? Everybody is invited and welcome in the kingdom of God. यही तो है। धर्म होगा तो आपको लगेगा, अरे ये आपका नाम तो अंकित है, आप कैसे क्रिश्चियन हो सकते हो? If it's about religion, you will say your name is Ankit. How अगर can you be a आपका Christian? नाम, अगर धर्म में जाना है तो उसके हिसाब से आपको चलना है, मगर धर्म के लिए नहीं आया यीशु मसीह। एक भी आयत बाइबल में नहीं है कि मैं ईसाई धर्म को बनाने के लिए आया हूं। If you have to go work according to religion, and you have to do everything according to the religion, but Jesus did not come for religion. There is not one verse he spoke about religion. अब एक बात बोलूंगा, बुरा मानना है तो मान लेना। I'll say one thing, if you have to get offended, do. ईसाई धर्म भी उतना ही मरा हुआ है जितने सारे धर्म हैं। Even Christianity, even the religion of Christianity is as dead as every other religion. आमेन, हालेलुया। क्योंकि धर्म में बंधन है, Because there is bondage in religion. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसको पुत्र ने स्वतंत्र किया है वो सच में स्वतंत्र है। And Jesus said, whom the Son has set free is free indeed. कई लोग ना मुझसे पूछते हैं, Many people ask me, जो सालों से क्रिश्चियन रहे हैं, those who have been Christian for वो years, कहते हैं, मेरे सारे दोस्त मुझे पूछते हैं, कई लोग बोलते हैं कि भैया तुम तो हमेशा से क्रिश्चियन थे, They ये say- अब क्या फर्क आ गया एफओएलजे में जाके? they say you were Christian all your life. What changed after you went to FOLJ? एफओएलजे में आके कुछ नहीं हुआ, Nothing happened in FOLJ. वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गए। They entered the kingdom of God.
जब राज्य में प्रवेश करे तो बीमारियां भाग गई, दुष्ट आत्माएं भाग गए, कर्जे भाग गए। When they entered the kingdom, sicknesses left them, demons left them, all debts left their life. हालेलुया। बोलो, मैं किसी धर्म में नहीं हूं, मैं अपने परमेश्वर के राज्य में हूं। Say, I'm not in any religion. I'm in the kingdom of my God. हालेलुया, आमेन। कितने लोग सीख रहे हैं कुछ? How many people are learning something? आमेन। यही फर्क है। That's the इसीलिए जो ईसाई धर्म में भी है, This is why even उनका those, जीवन आप उतना ही मरा हुआ देखोगे जैसे आप किसी और का देखते हो। even those who are in the religion called Christianity, you will see their life equally as dead as those in other religions. Because Jesus did not come to establish a new religion. क्योंकि यीशु मसीह एक नया धर्म स्थापित करने नहीं आए। अभी आपने पढ़ा, वो क्या कह रहा है? मैं किस लिए आया हूं? You just read why did he come? He कि said, स्वर्ग के राज्य को प्रकट करूं। so that I can manifest the kingdom of heaven. Amen? हालेलुया। आज आपको क्यों दिखता है इतने सारे मसीह लोग स्ट्रगल कर रहे हैं? Because they lack the revelation of the kingdom of God. Why do you see many believers struggling? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर के राज्य का प्रकाशन नहीं है। मैं रिसेंटली अभी दुबई और शारजा में था, I was recently in Dubai in Sharjah, और वो जो जगह है वो किंगडम है। and that place is a kingdom. और सुबह जब मैं उठा और मैं वचन पे मनन कर रहा था तो पवित्र आत्मा मुझे सिखाने लगा और मैं एक बहुत अलग नजरिए से किंगडम ऑफ गॉड को देखने लगा। When I woke up in the morning and I was meditating on the word, the Holy Spirit began to speak to me and show me the kingdom very differently. ओके, तो मैं चाहता हूँ ध्यान से सुनो। So I want you to hear carefully. सो शारजा में भी एक राजा है, दुबई में भी एक राजा है। There is a king in Sharjah, there is a king in ऐसे Dubai. किंगडम ऑफ गॉड में भी एक राजा है। Similarly, there is a king in the kingdom of God. ओके, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आपको बहुत सारी आयतों में नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि फिर यू नो इट विल बिकम मोर टीडियस, और मैं चाहता हूँ मैं आपसे बात कर सकूँ ज़्यादा। I want to talk to you simply, not taking you to many verses. Okay, so Jesus said, यीशु ने this कहा, kingdom, that is the kingdom of God, does not come by external observation. ये जो राज्य है, जो परमेश्वर का राज्य है, ये बाहरी रूप से देखने से नहीं दिखता। Okay, मगर जिस राज्य को प्रभु यीशु मसीह लेकर आया, जिस किंगडम को वो लेकर आया, वो अदृश्य या इनविजिबल किंगडम है। But the kingdom that Jesus has brought is an invisible kingdom. But just because it's invisible does not mean it's not real. पर सिर्फ इसलिए कि वो अदृश्य है, उसका ये मतलब नहीं कि वो असल में नहीं है। It is more real than this earth. इस पृथ्वी से ज्यादा असली है वो। क्योंकि उसी से सब कुछ बना है। Because from that, out of that is everything that exists. Amen. मैं चाहता हूँ बहुत प्रार्थना के साथ प्रेयरफुली आज आपके वचन को सुनो। Hear this word very prayerfully and carefully. और यही मेरे को प्रभु बता रहा था, क्यों, और यीशु ने भी ये सिखाया। मैं आपको वही अपने तरफ से कुछ नहीं ऐड करूंगा, जो प्रभु ने बोला है वचन में वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। I will add nothing. Whatever Jesus has taught, I am teaching. अगर ये चीज सीख गए, If you learn this, एक दिन भी कमी घटी नहीं देखोगे अपने you will जीवन not see lack even one day of your life. में। एक दिन भी नहीं देखोगे। Not even one day. ओके, सो सोचो आप किसी राज्य में जाओ Imagine you go into a kingdom जहाँ राजा होता है, where there is a king, जैसे दुबई है, शारजा है। like Dubai is Sharjah. अगर आप दुबई गए You went to और Dubai आपने देखा कि बहुत सारे भिखारी रास्ते में भीख मांग रहे हैं, and you saw many beggars who are begging by the wayside. बीमार लोग रोड पे पड़े हैं, Sick people are lying on the road. आप क्या बोलोगे? कितना अच्छा राजा है यहाँ का। What will you say? What a good king. क्या बोलोगे आप? What will you say? ये राजा अपने लोगों का ख्याल नहीं रखता। This king does not take care of his people. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand what I'm saying? जब प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर रहा था, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, वो क्या बता रहा था? वो बता रहा था, मेरे राज्य में कोई बीमारी नहीं, मेरे राज्य में कोई दुष्ट आत्मा का सताव नहीं है। When Jesus was healing the sick and casting out demons, he was telling, there is no sickness in my kingdom, there is no demon torment in my kingdom. Amen. अगर सपोज आप इंडिया में थे Suppose और you were in यहाँ India पर आप स्ट्रगल कर रहे थे and you were struggling here और आप दुबई चले गए and you went to Dubai
और दुबई का जो राजा है, And the king of Dubai, फॉर एग्जाम्पल ही इज वेरी बेनेवलेंट, वो बहुत ही दया से भरा हुआ है, अपने लोगों से बहुत प्यार करता है। क्या आपको लगता है कि कोई चेंज होगा आपकी लाइफ में? कितने लोगों को लगता है चेंज आएगा? let's say the king of Dubai is very merciful and loves his people. How many people think there will be a change in their life? अगर एक राजा अच्छा है If a king is good, तो उसकी प्रजा खुश होगी। his people will be happy. अगर एक राजा बुरा है If a king is तो bad, उसकी प्रजा सताव में होगी। his people will be in torment. हमारे पास तो बेस्ट राजा है। We have the best king. Our king is the best king. हमारा राजा सबसे अच्छा राजा Our है। king is the most benevolent king. हमारा राजा सबसे दया से भरा Our हुआ king है। is the most loving king. हमारा राजा तो सबसे ज्यादा प्यार करने वाला Our है। king is the most compassionate king. हमारा राजा तो सबसे ज्यादा करुणामय राजा है। और केवल ये ही नहीं, Not just this, वो राजा हमारा बाप है। that king is our dad. Amen. अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ Now I ask you this question. कि अगर आप राजा के बेटे और बेटी हैं तो आपका जीवन कैसा होगा? If you are a son and daughter of that king, how should your life be? हालेलुया। कैसा होगा आपका जीवन? How should your life be? बेस्ट होगा, बेस्ट। Your life will be the best अरे तो उस राजाओं के राजा के बेटे और बेटी हो आप लोग। because you are a daughter, a son of that king of kings. There are very few believers बहुत थोड़े विश्वासी हैं who recognize the kingship of Jesus. जो पहचानते हैं कि यीशु प्रभु है और राजा है। Amen. उसके राजस्व को नहीं समझते, They do not understand his kingship. धर्म की तरह लेते हैं। They take it as a religion. हाँ, यीशु भगवान है। हालेलुया, Yes, हालेलुया, he is हालेलुया। a deity. Yes, hallelujah, hallelujah. कोई मुझे बोला था लॉर्ड्स प्रेयर भाई 151 बार बोलो। मैंने कहा भैया, Somebody told me you should say the Lord's Prayer 151 times. जब नहीं रेवलेशन होगा परमेश्वर के राज्य का तो ऐसी बातें करेंगे। When they have no revelation of the kingdom, this is how they'll talk. So they don't see Jesus as a king. वो यीशु को एक राजा की तरह नहीं देखते। Jesus came as a king यीशु एक राजा की तरह आया to make you a king. आपको एक राजा बनाने के लिए। That's why so many Christians are struggling, suffering. बहुत से मसीह लोग संघर्षों में जी रहे हैं, जूझ रहे हैं चीजों से। क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, Because we live in a democracy. right? We don't understand kingdom protocols. हम नहीं जानते राज्य के सिद्धांत, नियम, कानून कैसे होते हैं। There are many free birds in the kingdom. बहुत से आजाद परिंदे हैं राज्य में। उनका मन कहता है मैं, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। Their heart says whatever I want I'll do. Because they have a democratic mindset. क्योंकि एक लोकतंत्र की सोच रखते हैं वो। आप जानते हैं कितने मसीह फेवरलेस जी रहे हैं आज? Do you know how many believers are living without favor in their life? और मैं आपको बता रहा हूँ बिना फेवर के लाइफ बहुत हार्ड है। And I'm telling you, life is very hard without favor. मगर एक बूंद फेवर की गिर गई ना आपके ऊपर, But just a drop of favor falls on your life. Amen. एक दिन खुदा ने मुझसे बात करी और बोला मेरे बेटे मैं तुझे सिखाऊंगा, I'll teach you how to find favor in my sight because there is a way you find favor in his sight. One day the Lord spoke to me and said, "My son, I will teach you how to get favor in my sight." क्योंकि एक तरीका है उसकी नजरों में तरफदारी पाने का। क्योंकि वो राजा है। Because he's a king. There are protocols in the kingdom. राज्य में सिद्धांत है। Amen. There are so many believers who got born again but are still living as rebels in the kingdom. बहुत से विश्वासी जो हैं जिन्होंने नया जन्म तो पा लिया पर एक उग्रवादी की तरह जी रहे हैं, विरोध करने वाले की They are तरह जी रहे rebellious. हैं। वो उग्रवादी की तरह जी रहे हैं। And you will see, you will meet them. They know all the Christian songs. उनको मिलोगे तो उनको सारे मसीह गाने आते They हैं, know the Bible verses. बाइबल के वर्सेस आते हैं। But when you look at their life behind the scenes, they live a miserable life. पर जब उनकी जिंदगी देखोगे तो पर्दे के पीछे दयनीय हालत है उनकी। Okay? कितने लोग अभी समझ रहे हैं मैं जो कह रहा How हूँ? many of you understand what I'm saying? आप सोचो, अब मैं आपको वो रीजन बता रहा हूँ जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, ये वन ऑफ द रीजन है, बहुत सारे हैं बट वन ऑफ द रीजन आपको बता रहा हूँ जिसकी वजह से कई मसीह आज फेवरलेस है।
There are many reasons, but this is one of the main reasons why many believers are favorless today. हाँ, आप सोचो मैं शारजा जाऊं, Imagine जहाँ एक राजा है, I go to Sharjah where there's a king, और मैं पीछे से राजा की वाइफ के बारे में बुरी बातें बोल रहा हूँ, and behind the back I speak evil things about the king's wife, और फिर राजा के पास जाऊं, and then I come to the king. बोलो राजा आप कितने महान हो। Oh, king, you are so great. अभी मैंने क्या किया 5 मिनट पहले, What did I just do 5 minutes ago? राजा की वाइफ की बुराई करी, I was speaking evil. क्रिटिसाइज करा, मैं रोज वो करता हूँ। I was आपको speaking लगता है वो राजा मुझे फेवर देगा? I was speaking evil and criticizing the king's wife. Now, do you think the king will give me favor? कितने ऐसे मसीह हैं There are so many वो believers रोज उल्टा बोलते हैं कलीसिया के लिए, who रोज। every day criticize the church, speak against the church, और वो सोचते हैं कि ये जो राजा है ना ये बहरा है, सुनता नहीं है। and they think this king is deaf, he does not hear. अपने कमरों में 4-5 बंदे बैठते हैं, In their rooms 4-5 people sit, they spew venom. और वो जहर उगलते हैं। Favor is lifted off from their life तरफदारी उठा दी जाती है उनकी जिंदगी से उसी समय, and they don't understand it. और वो समझते नहीं। वो रिलीजियस क्रिश्चियन हर साल आपको फास्टिंग करते हुए मिलेंगे, Those religious Christians, you will see them fast every year. हर साल फास्ट करते हैं, They are fasting every year. हर साल बहुत उपवास प्रार्थना करते They हैं, are fasting and बट यू praying विल every सी year. फेवर की एक बूंद नहीं दिखती उनके जीवन But you में। will not see a आप drop जानते हैं of क्यों? favor on their क्योंकि life उनका मुंह गंदा है। because their mouth is filthy. और उनको समझ में नहीं आता And they do not understand. क्यों ये बंदा अभी नया आया, ये क्यों आशीषित पा रहा, मैं 30 साल हो गए, मैंने क्यों नहीं परमेश्वर की भलाई देखी आज तक। Why this new guy is blessed so much and I'm here 30 years and I have not seen any blessing in my life? कितने ऐसे पास्टर हैं जब वो देखते हैं दूसरा चर्च ग्रो कर रहा है तो बुराई करते हैं उस चर्च की, उनका चर्च कभी ग्रो नहीं कर सकता। How many pastors, when they see other churches grow, they speak evil of that church and their church can never grow like that? क्यों? क्योंकि Why? राजा की वाइफ, द चर्च इज द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। जो मसीह की उसकी पत्नी है, उसकी दुल्हन है, वो मसीह की कलीसिया है जो उसकी दुल्हन है। If you speak bad about his wife, you're going to lose favor. अगर आप राजा की पत्नी की बुराई करोगे तो तरफदारी नहीं पाओगे। Think about this. अगर मुझे पता चले कोई बंदा है जो मेरी वाइफ के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलता है तो कहता है मेरे को ना आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए, दूंगा मैं उसे अपॉइंटमेंट। If there is someone that I get to know who speaks evil of my wife and then calls me and asks me for an appointment, will I give him an appointment? किंगडम में प्रोटोकॉल्स हैं, There are protocols in the kingdom. आपको समझना पड़ेगा। You have to understand. मैं आपको एक चीज, अभी मैं दुबई में भी पास्टर्स की मैंने एक ट्रेनिंग करी, मैं पास्टर्स को यही सिखा रहा था। I trained pastors in Dubai and I was teaching them. प्रभु ने मुझे एक बार, मैं एक दिन मैं अपने बिस्तर पे बैठा था और मैं अपने चारों ओर ब्लड को देखने लगा। One day I was sitting on my bed and I began to see blood everywhere अब खुली आंखों से, with open eyes. और तभी परमेश्वर का वचन मेरे पास आया And the word of the Lord came to me. और खुदावन मुझे कुछ सिखाने लगा। और मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। मैं आपसे पहले एक सवाल पूछता हूँ, ओल्ड टेस्टमेंट में अगर एक व्यक्ति था जो परफेक्ट था परमेश्वर का भवन बनाने के लिए, वो कौन था? कम ऑन टॉक टू मी। हाँ, डेविड, राइट? If there was one man who was perfect to build God's house in the Old Testament, that was David. वो डेविड था। That was David. वो जील रखता था, He had zeal for God's house. वो चाहता था भवन बनाना। He wanted to build God's house. मगर आप जानते हैं क्या वचन आया? But you know what the डेविड word इज अ was? मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। दाऊद एक ऐसा मनुष्य था जो परमेश्वर के पीछे रहता था। डेविड इज अ वर्शिपर, वो एक आराधक था। एंड यू नो व्हाट द लॉर्ड टोल्ड हिम? और आप जानते हैं प्रभु ने उससे क्या कहा था? लेट मी शो यू। आर यू रेडी? तैयार हो? हालेलुया। कैन यू पुट 1 Chronicles 22:7-8? पहला इतिहास 22 उसका 7 से 8। ये परमेश्वर ने दाऊद को कहा। This is what the Lord said to David. ओके, ध्यान से सुनो। Hear carefully. दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी मनसा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं। And David said to Solomon, my son, as for me, it was in my mind to build a house to the name of the Lord my God. परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि तूने लहू बहुत बहाया,
और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, सो तू मेरे नाम का भवन ना बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है. But the word of the Lord came to me saying, you have shed much blood and have made great wars. You shall not build a house for my name, because you have shed much blood on the earth in my sight. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand? जबकि दाऊद का डिजायर था, वो बर्निंग डिजायर था, he wanted to make the house of the Lord. God said, you will not make me a house. David had a burning desire to build a house for God, and the Lord said, तू मेरा घर नहीं बनाएगा, Because you have shed much blood. क्योंकि तूने बहुत लहू बहाया मेरी नजरों में. नए नियम में हमें एक तलवार की जरूरत नहीं है किसी का लहू बहाने की. We don't need a sword in the New Testament. In the New यीशु मसीह ने Testament. कहा, जब बिना रीजन के तुम अपने भाई की बुराई उसके पीठ के पीछे करते हो, मेरी नजर में तुमने अपने भाई बहन का मर्डर किया, उनका लहू बहाया है. Jesus said, when without a cause you speak evil of your brothers and sisters behind their back, you have shed their blood, you are their murderers. जिन पास्टर ने हमें इनवाइट किया था, वो एक काउंसलर हैं जो वहाँ के मेन रूलर्स हैं शारजाह और दुबई के, और वो हमें बता रहे थे राजा को पूरा पता है कितनी चर्चेस हैं, 1200 चर्चेस हैं दुबई और शारजाह के बीच में, कौन चर्च कितने बजे मिलती है, कितने लोग आते हैं, पास्टर का नाम क्या है, सारी इंफॉर्मेशन है. The pastor who had called us there, he is one of the counselors of the kings of Dubai and Sharjah. He said the kings know everything about how many churches, how many pastors, how many people come, what time the meeting is. जब एक अर्थली राजा को पता है, अरे हमारा राजा तो खुदा है, उसको सब पता है. When an earthly king knows the details, our God is the God of heaven and earth. He knows everything. अगर फेवर में जीना चाहते हो, अपने मुंह को गलत कहने से रोको किसी के लिए. If you want to live in favor, stop your mouth from speaking evil of anyone. Amen. Amen. नहीं, वो सोचते हैं मैं उपवास रख दूंगा, आपका उपवास आपके मुंह को ढांपेगा नहीं. They think I will fast, but your fasting will not cover your mouth. फरीसी लोग हफ्ते में, हर हफ्ते, हमने तो 21 दिन करा, आपने उसके बाद आप अगले साल करोगे, मगर फरीसी तो हफ्ते में 3 दिन हर हफ्ते करते थे उपवास. We fasted 21 days, now you will fast next year. But Pharisees used to fast 3 days every week. हर हफ्ते 3 दिन का उपवास, Every week 3 days fasting. यानी हर महीने 12 दिन का उपवास. That means 12 days every month. अब सोचो, और यीशु मसीह ने जब उनको देखा तो बोला, शैतान के बच्चों. And when Jesus saw them, he said, children of devil. काफी सीरियस हो गया माहौल. मैं आपको वो सिखा रहा हूं जो आपके जीवन में सच में बदलाव लाएगा. I am teaching you that which will truly change your life. एक प्रोटोकॉल है राजा का फेवर पाने का. There is a protocol to get favor अगर from the king. सीख गए उसका फेवर पाना, इतनी ब्लेस लाइफ जियोगे इस पृथ्वी पे, इतनी ब्लेस लाइफ जियोगे, आपकी जनरेशंस आपको ब्लेस कहेंगी. If you will learn to receive favor, you will live a blessed life and your generations will be blessed. Amen. आप कितने लोगों ने एस्तर पढ़ा है, एस्तर की पुस्तक? How many of you have read the book एस्तर of Esther? में राजा अहसुरस जो था, उसने वस्ती उसकी वाइफ थी, उसको बुलाया. King Xerxes called his wife Vashti. उसने कहा मेरे को नहीं आना. She said, I will not come. जानते क्या हुआ? You know what She happened? was cut off from favor. वो तरफदारी से काट दी गई, अलग कर दी. This is not a democracy. I don't like it. ये लोकतंत्र नहीं है, मुझे पसंद नहीं है. जो ऑर्डिनेंसेस परमेश्वर ने अपने वचन में लिखी हैं, जो- he is not asking your opinion about it. The ordinances that the Lord has mentioned in His Word, वो आपकी राय नहीं मांग रहा उनके बारे में. This is his ordinance. ये उसकी ऑर्डिनेंस है. I don't like it, pastor. मुझे पसंद नहीं है पास्टर. Okay. ठीक है. You can, until you honor the decree of a king, you cannot walk in his favor. जब तक आप एक राजा की घोषणा का आदर नहीं करोगे, उसकी तरफदारी में नहीं चलोगे. Amen. Do you know the 12 apostles? They were not volunteers. जो Jesus 12 ने, okay, Jesus didn't say, okay, I am about to do something great. I will heal the sick, cast out demons.
who among you are interested? They say, me. Jesus said, okay, you look good. ये ज़्यादा चिल्ला रहा है. You come. He didn't say that. 12 जो प्रेरित थे वो वॉलंटियर नहीं कर रहे थे। यीशु ने नहीं कहा कि मैं चमत्कार करने वाला हूँ, बीमारों को चंगा करने वाला हूँ, कौन कौन आना चाहता है, तो उस लोग चिल्लाने लगे तब चुना। ऐसा नहीं है। When an invitation comes to you, you either accept it or you reject it. There is no third thing. जब न्योता आता है तो या तो ग्रहण करते हो या ठुकराते हो, तीसरा रास्ता नहीं कोई। Amen. आप समझ रहे हैं मैं क्यों आपको ये बात बोल रहा हूँ? कि आप ईसाई धर्म में ना हो, आप समझो किंगडम को। So that you will not be in the religion called Christianity, but और you जब will आप understand. फेवर में चलोगे ना तो दुनिया देखेगी उसको, कोई छुपा, फेवर के चलने वाले छुप नहीं सकते। When you will walk in favor, the world will see. People who walk in favor, nobody can unsee it. It's not hidden. आप छुपा नहीं सकते उसको, आप you cannot हर hide. तरफ से फेवर दिखाई देगा। Favor will be seen, visible on मैं all डिक्लेयर sides. करता हूँ, इतना फेवर खुदावंद उड़ेले आपके जीवन में कि आप कहो मेरा प्याला उसके फेवर से उमड़ रहा है। I decree that the Lord God would pour out such favor on your life that your decrees would be, my cup is overflowing with His favor. Amen. Hallelujah. Now, I want to tell you something. मैं कुछ बताना चाहता In His kingdom, हूँ। उसके राज्य में, आपको आज एक तरीका बता रहा हूँ। I'm telling you a way. This is how I have found favor. ऐसे मैंने तरफदारी पाई है। Okay? All throughout the day, I keep telling him, you are my king and you are the most benevolent king. मैं दिन भर में उसको कहते रहता हूँ कि तू मेरा राजा है और तू सबसे ज़्यादा दयालु राजा है। Because you are my king and I am in your kingdom. क्योंकि तू मेरा राजा और मैं तेरे राज्य में हूँ। And you're the best king. और आप सबसे अच्छे राजा हो। You will take the best care of me. आप सबसे अच्छा ख्याल रखोगे मेरा। And he does. और वो करता है। Amen. Recognizing that Jesus is the king in this kingdom. ये पहचानना कि यीशु राजा है इस राज्य में। Amen. Amen. This word kingdom जो बेसिलिका वर्ड है, जो किंगडम है, इसका मतलब है किंग्स डोमिनियन।